ड्यूटोनॉमी 29 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे और फिर बीएसआई बाइबल में से 29 चैप्टर 13 चैप्टर इन 29 और 30 अध्याय हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। रिबान दिखंबर हुशरा बखसिरा लरबह कासियान दुरारतान अखम रुकुल रकाशर बेगतीन रबहम रुकुल रकासा रिदान मकशर बेगतीन रबहम रुकुल रकांद्र कलरुबा खसे हिकबो रुकुल रहा अकतकिन बरकल रबह कासियान दुरा दिरबेगदिगन मेरकल रबह अकासी हिकम बरहुल रहा हदेतकिन बरकल रबह कासियान दुरा रिदान मकशर बेगतीन रबहम रुकुल रकांद्र कलरुबा खसे हिकम बरहुल रकासियान दुरा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें अशुद्धता में से बचाइए। पिता परमेश्वर हमें पवित्र और शुद्ध जीवन की ओर लेकर चलिए। हमें पिता आपके लिए परमेश्वर जीवित बलिदान बने रहने के लिए सहायता कीजिए। हमारे पीछे परमेश्वर पिता हम आपके नाम को ऊंचा बनाए रखने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर जब भी हम जहाँ कहीं पर भी खुदा हो हम आपके नाम को ऊंचा करते रहे। पिता यही ज्ञान यही सच्चाई आपके वचन से प्राप्त होता है, वह हमारे सामने उजियाले में भरपूर कर दीजिए, रोशनी दीजिए, ताकि उन वचनों के भेद समझकर तेरी गहरी सच्चाई को जानते हुए हम परमेश्वर तेरे भय में बढ़ते जाएं और तेरे राज्य के कामों में परमेश्वर हम मगन रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। झूठ को पर्दाफाश कीजिए हमारे सामने से खुदा, झूठ की ताकत को तोड़ दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। ड्यूटोनॉमी 29 किंग्स जेम्स वर्जन में से फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb. And Moses called unto all Israel and said unto them, Ye have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh and unto all the servants and unto all his land, the great temptations which thine eyes have seen, the signs and those great miracles. Yet the Lord hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto this day. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink, that ye might know that I am the Lord your God. And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon and Og the king of Bashan came out against us unto battle, and we smote them, and we took their land, and gave it for an inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh. Keep therefore the words of his covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do. Ye stand this day all of you before the Lord your God, your captains of your tribes, your elders, and your officers with all the men of Israel, your little ones, your wives, and thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water, that thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into his oath which the Lord thy God maketh with thee this day, that he may establish thee today for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, as he hath said unto thee, and as he hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Neither with you only do I make this covenant and this oath, but with him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us this day. For ye know how we have dwelt in the land of Egypt, and how we came through the nations which ye passed by, and ye have seen their abominations and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them. Lest there should be among you man or woman, or family or tribe, whose heart turneth away this day from the Lord our God, to go and serve the gods of these nations,
lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood. And it came come to pass, when he heareth the words of this curse, that he bless himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness to thirst. The Lord will not spare him, but then the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from under heaven. And the Lord shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel, according to all the curses of the covenant that are written in this book of the law, so that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the Lord hath laid upon it, and that the whole land thereof is brimstone, and soft salt, and burning, that it is not sown nor beareth, nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in his anger and in his wrath. Even all nations shall say, wherefore hath the Lord done this unto this land? What meaneth the heat of this great anger? Then men shall say, because they have forsaken the covenant of the Lord God of their fathers, which he made with them when he brought them forth out of the land of Egypt. For they went and served other gods and worshipped them, gods whom they knew not, and whom he had not given unto them. And the anger of the Lord was kindled against this land, to bring upon it all the curses that are written in this book. And the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. हम पढ़ेंगे 30 चैप्टर ड्यूटोनॉमी 30 चैप्टर हम पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 30 किंग्स जेम्स वर्जन में से. And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations whither the Lord thy God hath driven thee, and shalt return unto the Lord thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart and with all thy soul, that then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations whither the Lord thy God hath scattered thee. If any of thine be driven not unto the outmost parts of heaven, from thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will he fetch thee. And the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it, and he will do thee good and multiply thee above thy fathers. And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. And the Lord thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee. And thou shalt return and obey the voice of the Lord, and do all his commandments which I command thee this day. And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle,
and in the fruit of thy land for good, for the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, for this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off. It is not in heaven, that thou shouldest say, who shall go up for us to heaven? Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it and do it? Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, who shall go over the sea for us, and do bring it unto us, that we may hear it and do it? But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. For he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. हिंदी में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 29 अध्याय पहले वचन से. मोआब देश में परमेश्वर की वाचा. पहले वचन से, इसराइलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन है. और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है.
फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसीलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीत कर उनका देश ले लिया और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या अपन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सबके सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ के में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की जैसी मूर्ति देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों ने ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग, हाँ, जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ, देखो क्या लिखा है। और ऐसा मनुष्य शाप के वचन सुनकर, ठीक है, हाँ, दुनिया के अंदर ऐसे ही लोग हैं, ओके। हम जब बताते हैं उनको ऐसा ना करो, क्योंकि परमेश्वर श्राप भी रिलीज किया हुआ है, आप उस श्राप से परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होता है, हम देख लेंगे जो होना है, ओके। तो यहाँ उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। नहीं होगा, ओके। भ्रम में जीते हैं लोग, बहुत डेंजरस जोन में जी रहे हैं। सच में उनको प्रार्थना की ज़रूरत है, ओके। जितना हो सके आपके पास ऐसे इर्द गिर्द में जो जितने लोग ऐसे मन में लेके बैठे कि हाँ कुछ नहीं होगा, हमको, हम लोग जो करना है वही करते रहेंगे, उनके फोटोग्राफ्स लेकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के प्रेयर माउंटेन के प्रेयर ईमेल जो वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के रखे जाते हैं, वहाँ उस जगह पे भेजिए, ओके। क्योंकि ये अंधेरा इतना गहरा है ऐसे लोगों के ऊपर कि उनको परमेश्वर के रोशनी के अलावा हमारी बात समझा नहीं सकती है, ओके। उनको परमेश्वर का आत्मा ही उनको बदल कर सच और झूठ का फ़र्क बता सकता है,
ओके, उनके भ्रम को तोड़ सकता है। प्लीज़ मेरी आपसे ये गहरी विनती है, क्योंकि मैंने इतनी गहराई से देखा है, इतना गहरा अंधेरा लोगों के ऊपर अभी बैठा हुआ है कि वो हम कुछ भी बोलो परमेश्वर के वचन से, बिल्कुल उनको असर नहीं है उसका। ओके, उनको ऐसा लगता है ये सिर्फ अलग वाली बात है, हमको जो करना है वही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उनके अंदर का धैर्य, ढीठपन कहाँ से आता है? शैतान का आत्मा उनको इंस्ट्रक्शन देता है। वो अंधेरा है। ओके, वो अंधेरे की सुन रहे हैं, वो अपने माइंड को, अपने मन को अंधेरे में लगा के बैठे हुए हैं। ओके, तो उनको ये श्राप के वचन देखने से उनको मजाक लग जाता है ना बाबा। ओके, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि जब जॉन रेमिरेज वहाँ पहुँच गया था जहाँ पे श्राप के लोग पहुँचाए जाने वाले हैं, अरे भाई वो तो महारथी था शैतान के जगत में, है ना। वहाँ से वो निकल कर आया, बोला क्या कर रहा है यीशु, तू मुझे वहाँ क्यों छोड़ रहा है, वो तो मेरी जगह नहीं है, तू यहाँ क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे, राइट। ओके, तो महारथी समझ गया भाई ये तो मेरी जगह नहीं है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनके ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा उजियाला लेकर आएगा तो ये लोग बचाए जा सकते हैं, नहीं तो इनके मत्ती मारी गई है अंधेरे के द्वारा। ठीक है, आप ऐसे लोगों की फ़ोटोग्राफ ले लो और प्रेयर माउंटेन के ऊपर फ़ायदा उठाओ। ऐसे ही लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो अपनी ताकत का हौसला बढ़ा रहे, हियाव बढ़ा रहे और हमारे ऊपर प्रबल होकर दिखा रहे, उन्हीं लोगों को खास तौर पर आपने फ़ोटोग्राफ निकालना है और प्रेयर माउंटेन के पास भेज देना है। ओके, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ का जो 8 बजे का प्रेयर माउंटेन है भेज दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर का ये अंधेरा टूटना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। उनके ऊपर से ये भ्रम तोड़ना केवल परमेश्वर कर सकता है। आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर देगा इस वजह के लिए, ठीक है, क्योंकि जो पापियों के मन फेर कर लाता है वो परमेश्वर बोलता है बहुत बड़े रिवॉर्ड का हकदार बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ऐसे गहरे अंधेरे के लिए ही शैतान अब बहुत लोगों को अपने कब्जे में रख रहा है, वैसे ही परमेश्वर भी उनको छुड़ाने के रास्ते भी दे रहा है। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसा मनुष्य इस श्राप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियों और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदम और सबुयम के समान ये हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है? तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उन्होंने उसको तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है और पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने
कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश से वंश में रहेंगे, इसलिए कि इस अध्याय की सब बातें पूरी की जाए। 30 वचन पढ़ेंगे, 30 अध्याय पढ़ेंगे। रुतांते खंबर हो शराबा खासिरालर बहु खुशियांदुरा। अध्याय आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें। फिर जब आशीष के और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर दिया फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो। देखा, परमेश्वर हमारे मन का फेर कर आने को बहुत महत्व देता है। पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो हम कोई जादू टोना, कोई मूर्ति पूजा, किसी भी प्रकार के बंधनों से नहीं डरना है, कोई फंदे फांसों से नहीं डरना है। ओके, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, कोई भी प्रकार के श्रापों से नहीं डरना है अगर मसीह के अंदर है तो। ओके, हमने केवल परमेश्वर के सामने रिपेंट करना है और हमने परमेश्वर को मांगना है कि हमको लौट कर लेकर आ तेरे स्थान में। वो लेकर आता है, वो सारे बंधनों में से छुड़वा कर लेकर आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको कहाँ तक वो किस बंधन में, कितने जटिल बंधन में डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये मसीहों की विरासत है। ओके, ये मसीहों के लिए दिया गया विरासत है। छुटकारा ये मसीहों का विरासत है। आमीन। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। देखो, परमेश्वर बंधुआई से निकालता भी है और फिर बाद में उसका फ्यूचर दिखाता है वो। ओके, जो बंधुआई में रहता है उसका फ्यूचर नहीं रहता है। ओके, जो बंधुआई में रहता है, जो कैद में रहता है, जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जो यीशु मसीह के साथ नहीं है, जो परमेश्वर के बिना जीवन जी रहा है, उसको फ्यूचर नहीं है। अगर वो बंधन में पड़ जाता है उसका खत्म हो जाता है उसके अंदर। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है जब मन फेर के आओगे तो मैं तुमको माफ भी करूंगा और प्लस तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बंधन से निकालूंगा तुमको बाहर। जिधर शत्रु ने तुमको पहुंचाया है वहां से मैं तुमको निकाल कर लाऊंगा और तुमको जहां होना चाहिए, जो मैंने ठहराया था, उसमें तुमको रख दूंगा और तुम्हारा भविष्य शुरू कर दूंगा मैं। देखो कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, है ना। तो इसके लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, जो इवेंजलिज्म एंड प्रेयर में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये भविष्य बना रही है और हमको बंधन में से छूटने का वो रास्ता है। ठीक है, हम बंधन का, आज़ादी का जीवन जीने का परमेश्वर मंजूर करता है। उसकी ये मन प्रसन्नता है हमारे लिए कि वो हमको बंधन से छुड़वाने की प्रार्थना हमसे मांगता है वो। ओके, वो मांगता है तुम मांगो मुझसे, मैं तुमको छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। ओके, तुम बताओ तुम्हारे मसले क्या है, तुम बताओ तुम्हारे उलझने क्या है जो तुमको कभी नहीं सुलझाएंगे। ऐसे लोग चैलेंज करते हैं, उन बताओ तुम मुझे, प्रार्थना करो मुझसे, मैं उसका जिम्मेदारी उठाता हूँ। और फिर वहाँ से वो निकालता है हमको उस जगह में रखता है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है, और फिर वहाँ से हमारा भविष्य शुरू भी करके देता है वो। हालेलुया। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा भविष्य भी बन रहा है। आमीन। शत्रु का ठहराया हुआ
कोई भी गड्ढा हमारा भविष्य नहीं है। हालेलुया। शत्रु ने ठहराई हुई कोई भी लिमिटेशन हमारा भविष्य नहीं है। ओके, शत्रु ने ठहराए हुए दायरे, कैद हमारा भविष्य नहीं है। हालेलुया। हम निकल आए उसमें से, जैसे हमने प्रार्थना करना शुरू किया हम निकल आए उसमें से। यही तो परमेश्वर चाहता है ना। तो हम निकल आए हैं, हम आगे निकल आए हैं और हमारे लिए वो भविष्य बन चुका है जो परमेश्वर हमको छुड़ाने के साथ साथ देना चाहता है। आमीन। ये महान परमेश्वर है हमारा। और देखिए आगे क्या कहता है वो, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। देखो परमेश्वर, देखो मरने की बात के लिए छुड़ा के नहीं लाता है हमको। हालेलुया। वो हमको जीवित रहे कहता है, तुझे इसीलिए मैं छुड़ा के लाया ताकि तू जीवित रहे। हालेलुया। तो हम सिर्फ छुटकारा नहीं पाते हैं, हम जीवित भी रहने का हमको प्राप्त करा के देता है परमेश्वर। छुड़ाना इसीलिए करता है ताकि हम जीवित रहे। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। देखो आगे क्या लिखता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। देखा। हाँ, अब बताइए, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब फिर भी शत्रु हमारा पीछा करेंगे तो मूर्खता कर रहे हैं वो, है ना। क्या बोल रहा है परमेश्वर, ये जो श्राप, ओके, अब तू मेरी तरफ फिर गया है, तेरे ऊपर जो श्राप थे, ये जो श्राप की गिनतियाँ थी, वो सब मैं तेरे पीछे पड़े हुए शत्रुओं के ऊपर भेज दूंगा। हालेलुया। तो देखो आत्मा के जगत में स्वामी का होना कितना ज़रूरी है। ओके, अंधकार के जगत का स्वामी शैतान बना बैठा है, लेकिन हम उजियाले के जगत के लोगों का स्वामी हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारा स्वामी है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है हमको कि अब मैं क्या करूँगा, तुम मेरे पास आ गए, तुमने मुझे स्वामी कहा, तुम मेरे अधीन हो गए, तुम मेरी सेवा में जड़ चुके हो, मेरी सेवा में बंध चुके हो। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो तेरे पीछे पड़े हुए तेरे बैरी है, जो तुझ पर श्राप पड़े थे, अब मैं उनको क्या करूँगा, मैं उनको उनके ऊपर डालूंगा। तो आपको डालने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना। क्या आपको उनको कुछ हानि करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। ओके, आपको जो करना है वो आपने कर दिया। आमीन। आपने माफ़ी मांगी, आपने मन फेर लिया, आप परमेश्वर के सामने आ गए, आपने गिड़गिड़ा कर अपने मन की बात परमेश्वर को बता दिया। अब क्या है, अब ख़त्म। आपने भविष्य पाया, आप जीवित रहने वाले हैं, और आपके बैरी जो आपके पीछे पड़े हैं, अब देखना उनके नुकसान कैसे कैसे है ना। तो उनका कहना क्या था, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है उन्हीं के लिए मैंने ये सब करके रखा है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ओके, वो झूठ वायदे देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, और उन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। हालेलुया। देखो, जब हमारे लिए परमेश्वर ने छुटकारा दिया, भविष्य दिया, जीवित रहने के लिए हमको छोड़ दिया, जाओ जीवित रहो पृथ्वी के ऊपर। हाँ, अब उसके बाद बैरी पीछे पड़े हैं, उनके ऊपर परमेश्वर कहता है मैं उनके ऊपर तेरे सारे श्रापों को डालने वाला। तो क्या करेगा उसके बाद, तू मन फिराए हुए अवस्था में मेरी बातों को सुनेगा, मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। हम कर रहे हैं ना, आज हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने समय बिता रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को मायने दे रहे, महत्व दे रहे हैं ना।
और परमेश्वर ने बोला अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, तो हमारे बैरियों का फोटोग्राफ निकाल के हम किसको भेज रहे? प्रार्थना के भवन में भेज रहे कि इनके ऊपर प्रार्थना करो, ये अंधेरा घट जाए और इनको उजियाला मिल जाए। आमीन। तो हमारे तरफ से परमेश्वर है, ये वायदा कितना पक्का हमारे ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। और देखिए आगे क्या कहता है, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे और कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात के साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन है ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। तो शत्रु हमारा पीछा करता है, तब भी हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाना है, प्रार्थना करते रहना है, उपवास करते रहना है, परमेश्वर के भजन गाते रहना है, परमेश्वर के कामों को करते रहना है, उसके कलसिया में हम अपने सहभाग देते रहना है, सब कुछ हमने फिर भी करते रहना है, ये लिपटे रहना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। क्योंकि यही हमारा जीवन है और दीर्घ जीवन भी है। हालेलुया। शत्रु जो कर रहा है उससे हमको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो उसके पीछे हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। उस समय में भी हमने अपने काम परमेश्वर के सामने लाकर रखना है, दिन ब दिन, रोज कर रोज। हालेलुया। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा हमें इन वचनों में से सच्चाई को देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि आपने हमें सच्चाई दी और हम इस सच्चाई के कारण परमेश्वर के भय में बढ़ते जा रहे हैं। पिता पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे, देखिए आज का 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम देखेंगे। रिबांते खम्बरो हुशरखा सिरालरो बहुखोसे
आज का 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है रोमन्स 3 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, सैम्स 94 चैप्टर, रोमियो के पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 12 वचन, भजन संहिता 94 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में, पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। जब हम व्यक्तिगत समय में पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमको जो सिखाना चाहता है वो हम सीख सकेंगे, और परमेश्वर का आत्मा हमको आगे बढ़ने का रास्ता देता है वो हम समझ पाएंगे। हालेलुया। ज़रूरी नहीं सभी ने इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। ओके, आपको जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वैसे आप पढ़िए। इसके साथ साथ परमेश्वर के आत्मा ने निश्चित रूप से हमें सिखाना है, इस पर ध्यान लगाना है, और परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमें पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।